Good evening, everyone. I am Mrs. Shweta Parihar, Principal of Gajera Global School, along with my co-host, Ms. Kamini Patel. Welcome you all on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera Charitable Trust. The vision of Gajera Trust is to build a sustainable society of creative young innovators empowered with equal opportunities to thrive and flourish, and enhancing each life by spreading one happiness. We emphasize on bringing enhancement in three integral parts of the society, that is education, healthcare, and serve the community. Today's webinar is one such step for the community to realize the power of our requires, demands us to be very, very strong, not only physical but mentally as well. And as John Milton said, the mind is its own place and it itself can make a heaven of hell and a hell of heaven. And hence, the topic of today's webinar, the magic of your brain, is very relevant and will help us to unlock our inner potential. And for that, we have an expert coach with us, Dr. Shankar Goenka. I request my co-host, Vice Principal of Gajera Global School, Ms. Kamini Patel, to introduce the guest of the session. Over to you, Kamini ma'am. Thank you, Shweta. Thank you. A very good evening to everyone present over here. Welcome, Shankar sir, to the session. We have been waiting quite eagerly for this session. But before we begin, I must introduce you to our educators and all present over here. Dr. Shankar Goenka has so many feathers in his cap. To begin with, he is the managing director of a company called Wow Factors India Private Limited and also a member of United Nations Global Compact. His research has led to specializing in whole brain thinking that has the potential to revolutionize the field of sports science. He advises sports people in the capacity of an advisor in the Sports Academy Association of India and teaches at Maharshi Dayanand University, Rohtak. He has given speeches in numerous TEDx talks, motivating countless executives, academicians, sports people, students, and business owners of Fortune 500 plus company. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure. Yeah. Yes, so sir. So without any delay, I would very proudly welcome the guest of the day, Dr. Shankar Goenka. Sir, I would request you to please comment the talk. Over to you, sir. Thank you. Wow. Thank you very much. Thank you very much and good evening to all. I hope everyone is alive and I hope everyone is there on the screen. So thank you very much, ma'am, for inviting me. It's an honor. It's a privilege. And I feel great to be part of this program. So first, as every time when I come on live or when I go to audience and when I speak to them, I always tell them, please bring in a smile on your face. क्योंकि जिंदगी में हम सब लोग खुशियां ही ढूंढना चाहते हैं. The message I want to give all of you today evening is कि खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है. So the point I'm trying to do and the point I'm trying to convey to all of you today evening is इन छोटी छोटी खुशियों को आप ढूंढने की कोशिश करिए. So thank you very much once again, and I hope, ma'am, my voice is clear. Am I audible correctly? Can you hear me nicely and is it clear so that I can yes, go? Sir, yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you very much. And what I'm going to do now, I'm going to take you through a small presentation, and I'm sure this is going to make a lot of sense and going to take you through a small journey. So as ma'am says, I'm Shankar Goenka and I'm married and I have one wife called Viniti. I have two children, Radhika and Parth, and I work with industries.
For last 16 years, I'm into education for 14 years, and that's what small job I have done. So the point I want to tell you today evening is, and what I'm going to ask all of you today, कि please help me to understand कि what is the age of an elephant. To my audience, I'm going to request you, please let me know what is the age of an elephant. So, ma'am, how can I see this? That's what I want to do. You can see in comment. So comment, because since I have done a presentation, so what is happening now? So I can't see the. 1 second, please. So can you? Yeah. So, ma'am, yeah. So can you see the comment box? Yes, sir. Okay. So please help me to understand what is the age of an elephant. लोग लिख रहे हैं आपको? Yeah, Sangeeta ma'am is telling 80 years. Okay, very good. Years. Okay. So मैडम जो एज ऑफ एन एलिफेंट है वो 56 ईयर्स की है, पर वो 56 ईयर कब है? जब वो एलिफेंट जंगल में रहता है, और वही एलिफेंट जब जू में आता है, he lives only for 17 years. Can you imagine what a devastating effect? From 56 years, they live only 17 years. यानी 40 years वो अपनी जिंदगी के खो देते हैं, क्योंकि उनको बंद कमरों में रखा जाता है, जू में रखा जाता है, वो अपनी ओरिजिनलिटी को खो देते हैं. What I want to tell you, sir, and to all my respected audience, that 85% of your financial success is due to your personality. To all my great teachers, the point I want to tell you today evening is, ये important नहीं है कि आपको knowledge कितनी है, important ये है आपकी personality कैसी है, आपको communication skill कैसी है. मेरा strong मानना है कि if there is a breakdown in communication, there is a breakdown in trust. If there is a breakdown in trust, there is a breakdown in energy. And if there is a breakdown in energy, there is a breakdown in productivity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप नेगोशिएट कैसे करते हैं, आप लीड कैसे करते हैं, क्योंकि दुनिया में खाली 15% जो आपको इंफॉर्मेशन है या आपकी सक्सेस है, वो खाली आपकी टेक्निकल नॉलेज से आती है. टू ऑल माय ग्रेट एजुकेटर्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, प्लीज वर्क ऑन अवर चिल्ड्रन, हाउ दे कैन डेवलप देयर पर्सनैलिटी. वो अपनी बात तो बोलना सीखे अपने मन से. Second important part I am going to ask you is, please help me to understand who is the biggest animal in jungle. Ma'am, I need your help and you need to tell me if people are writing here. Sure, sir. Yeah, come on, educators. Who is the biggest animal? हाँ, who is the biggest animal? देखिए मैम, देखिए मजे की बात, मैंने शुरू में क्या कहा कि पर्सनालिटी डेवलप करिए, कोई नहीं बोलना चाहता. Can you please help me to understand how many audience is there? Brinzel says lion. Elephant. Tejal says elephant. Okay, so the biggest animal is majority is elephant. Okay, so elephant is the biggest animal in jungle. My second question to you is, who is the tallest animal in jungle? Audience, please. Tallest animal in the jungle? Yeah, please ask audience. Okay. Yeah, Shreya ma'am is telling it's giraffe. Sejal Nathwani says giraffe. Okay. So again, the majority giraffe. Okay. So the tallest animal in jungle is giraffe. My next question is, who is the wisest animal in giraffe? Who is the wisest and clever animal? Who is the wisest animal in jungle? देखिए मैम, आपकी ऑडियंस जवाब नहीं दे रही है.
आपने Okay. मुझे तो कह दिया कि सर हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, आपने कहा मैम हमारी ऑडियंस बहुत सुनने वाली है, पर आपकी ऑडियंस पार्टिसिपेटिव नहीं है। No, they are participating, sir. So the Very answer good. is the It's taking. So the fox is the wisest animal in jungle. My last question: who is the fastest animal in jungle? Come on, audience. Come on, audience. Be quick. Be quick and answer. Actually, sir is playing the fastest fingers first. Who is the fastest animal? So the fastest animal in jungle is cheetah. Yes, sir. The answer, pet audience are And saying who cheetah. and who is the king of jungle? Who is the king of jungle? Yes, audience. It's lion. It lion. Very good, ma'am. अब मैम एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, न तो लॉयन बिगेस्ट है, न लॉयन टॉलेस्ट है, न लॉयन वाइजेस्ट है, और ना ही लॉयन फास्टेस्ट है, उसके बाद तो जंगल का राजा क्यों है? आपकी ऑडियंस जवाब दे रही है मैम? Come on, audience. Why lion is the king of jungle? क्योंकि मैम Power. Okay. Because of power. क्योंकि उसका एटीट्यूड वैसा है. Power to dominate. Yes, because he is an attitude. लाइफ में इंपॉर्टेंट पता क्या बात है? लाइफ में इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे अपने लोगों को जीतें, हम कैसे अपने बच्चों का एटीट्यूड इंप्रूव करें, हम अपने बच्चों में कैसे सेवा भाव लाएं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से मैम कि हम सबका नजरिया अलग अलग है. यही बात मैं आपसे दोबारा एक अगली स्लाइड में पूछना चाहता हूं कि ये स्लाइड्स में फ्लावर्स हैं, क्या आपको ये फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं जो कि ट्यूलिप हैं, या यही ट्यूलिप इस तरीके से रखे गए ये अच्छे लग रहे हैं? मैम आर दे आंसरिंग? No, sir. Actually, you'll have to repeat the question, sir. ओके, माय क्वेश्चन इज, दिस इज स्लाइड नंबर 1 जो कि ट्यूलिप फ्लावर्स की है, और ये स्लाइड नंबर 2 है, ये भी ट्यूलिप फ्लावर्स की है. क्या ऑडियंस को ये स्लाइड नंबर 1 पसंद है या ऑडियंस को स्लाइड नंबर 2 पसंद है? ये मेरा सवाल है. Majority of audience is second one. Second one, yeah. ओके, सो क्यों सेकंड वन क्यों पसंद आई सबको? Maybe because it's colorful. ओके, मे बी बिकॉज ऑफ कलरफुल. ऑल राइट. और कोई बात? Why is the second slide so beautiful? Because of presentation. One man says presentation. ओके, कोई बात नहीं, राइट रॉन्ग की चिंता मत करिए. मैं ये जानना चाहता हूं कि वो अच्छी क्यों है. Because of uniformity. तो मेरा ये कहना है कि जो मैंने आपको स्लाइड पहले दिखाई थी और दूसरी दिखाई थी, इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि हम सबके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं हैं. हमारे बच्चे जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट टैलेंट. फर्क इतना क्या है कि हमने उनको फर्स्ट स्लाइड की तरीके से झुंड में मिला दिया है. व्हाट वी आर सपोज टू डू बेसिकली, हमें हर बच्चा अपनी लाइन में अलग तरीके से है. कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई शूटिंग में अच्छा है, कोई फोटोग्राफी में अच्छा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है. व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो बच्चा किस चीज में अच्छा है. बच्चे का तो छोड़िए, जो बड़े सीनियर लोग हैं
उनके साथ भी ये चैलेंज है। उनको ये नहीं पता है कि हम कैसे अपना काम इस हिसाब से करें कि हमारा पोटेंशियल हमें दिखाई दे। अब मैं जो अगली स्लाइड आपके पास दिखाना चाहता हूं वो ये है कि मुझे प्लीज बताइए आपको यहां क्या दिख रहा है। टू ऑल माय ऑडियंस, व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज कि अब आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। डॉट। शुभानी पटेल मैम डॉट बोल रही है, वेरी गुड। पटेल हेमांगी मैम, आई प्लीज कम ऑन, ब्लैक डॉट। रिया जी कहती है ब्लैक डॉट। यस मैम, आई कैन सी द कमेंट्स नाउ। गुरप्रीत सिंह जी बोलते हैं ब्लैक डॉट, वेरी गुड। इंदिरा सेन गुप्ता जी बोलती है डॉट, वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज कम ऑन ऑडियंस। यदि आप सो रहे हैं तो मैं बात नहीं करूंगा, प्लीज। डॉट, वेरी गुड। आई वांट टू सी योर कमेंट्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। Some of them have said target point. कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे आप बताइए मुझे, चिंता मत करिए। Some say world, some say target, dot, white background. So varieties of answers. So मैम मैक्सिमम लोग कहते हैं ब्लैक डॉट। जब ये स्लाइड मैंने पहली बार देखी थी तो मुझे व्हाइट स्पेस नजर आया। दुनिया के अंदर पेरेंट्स और टीचर्स सबसे बड़ी गलती लाइफ में ये करते हैं कि उनको हमारे बच्चों के अंदर सिर्फ कमियां नजर आती हैं। उस बच्चे के अंदर कितनी सारा व्हाइट स्पेस है, उस बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा है, वो के काम कर सकता है, वो जीवन में कोई नहीं देखना चाहता। My humble request to all my audience, what I'm requesting all of you today evening is, एक बार तो उस व्हाइट स्पेस को देखने की कोशिश तो करो। क्योंकि जिंदगी में जब भी हम किससे मिलते हैं हम अपना मन बना लेते हैं कि इसके साथ मेरी बनेगी या इसके साथ मेरी नहीं बनेगी। (2006) तक मैं 2006 10 अक्टूबर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। अपने पिताजी की फैक्ट्रियां संभालता था। मेरे लिए लाइफ में सब कुछ नंबर्स, पैसा, बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट थी। 10 सितंबर 2006 को मुझे पता लगा कि आई एम द वर्स्ट फादर फॉर माई चिल्ड्रन, बिकॉज आई हैव 2 चिल्ड्रन एट होम and I never saw that white space in them. And then I decided to be a teacher. The point I want to convey you, all of you today evening is, my great audience, please look at the white space. बच्चा एग्जाम से आता है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? तेरे नंबर कम क्यों आए? उस बच्चे को सांस तो लेने दो, वो तो पहले से डरा हुआ है। उसको तो मालूम है घर जाके मेरी पिटाई होने वाली है। My humble request is, I am going to give you action plan today, that how we can look that white space into this. To all my audience, please write on the chat box, am I talking sense? Whatever I'm talking to you today, please help me to understand, do you want to see that white space? Please help me कि the way I'm talking, is it making sense to you?
क्या मेरी भाषा, क्योंकि हमें तो हिंदी मानुस दिल्ली में बैठा हुआ, तमें तो सब गुजराती मानुस. So I don't know if my language is correct. Am I speaking in the right flow? Is my speed is too fast, or I'm okay with this? Is my presentation to you is perfect? Please help me to understand that. And next 30 minutes, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, आपके दिमाग की घंटी बजाने वाला हूं. Yes, please. Kalpesh, you're absolutely right, sir. Thank you very much. Devashish Dattaji, thank you very much. Alpa, thank you. Nancy Mirai, ma'am. Right, sir. Vinita Bhatt, absolutely fine, sir. Sumitra ji, thank you very much. Krishna Dedania, thank you very much. Yes, sir. It's okay, sir. It's okay is not a very good language. So language पे काम करना बहुत important है, sir. Either you say yes or you say no. हम जिंदगी में क्या गलती करते हैं? हम सब गोल गोल बातें करते हैं. लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है. लाइफ का, I agree with you. लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है, आइदर 0 or 1. फिनिश. I'm good. Sir, as a principal, my experience is also same that parents will come with the problems. Parents will come, my child is not. Most of the parents that they don't see the brighter side. They don't, they see the child is very good at music or dance, and we at Gajera Trust we. Don't worry, ma'am. Today I'm going to fix them up. That's perfectly fine if the child is not good in maths and science, and if he's doing very good at sports or music or any other thing. So that is very, very important, rightly, very apt that it's very important to see the white space, the brighter side of the child, of course. So, and it's not only your child, it's your own family also. Families में क्या होता है कि घर में पेरेंट एक तरफ, बच्चा एक तरफ, माँ एक तरफ, पिता एक तरफ. Madam, I'm very surprised. I do a lot of work on parenting. I do a lot of parenting workshops. We got a book on parenting. और मुझे इन दिनों पता लगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स से 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने बात नहीं करते हैं. आप किस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? एजुकेशन का काम जोड़ने का है, एजुकेशन का काम तोड़ने का नहीं है. एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसका बच्चा उससे 2-2 महीने, 3-3 महीने बात नहीं करना चाहता है. वो बच्चा अपने पापा के मन में क्या गुजर रहा है वो नहीं पूछना चाहता है, और ना ही पिता के पास इतना टाइम है कि वो अपने बच्चों के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछे. हम गलती क्या करते हैं? जो कुछ हमारे ऊपर बीता वो बातें हम अपने बच्चों पे थोपना चाहते हैं. Going to the next level. पटेल मैम लिखती है हिंदी में कीजिए. मैम, आई एम स्पीकिंग सो मच ऑफ हिंदी, आई बिलीव. So I will try to do Hindi English mix because I'm sure some of the parents also understand English. So I will cover both. जो English audience है, I promise you, मैं सारी बात इंग्लिश में भी करूंगा, और जो हिंदी ऑडियंस है, don't worry, I will make sure that I speak Hindi also. तो मैं खिचड़ी बना के बात करूंगा, so don't worry. वैसे भी मुझे गुजरात की खिचड़ी बहुत पसंद है. My next point to all of you is, इस समय दुनिया में 2 तरह के लोग हैं. मैडम, एक ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं और उनको पता है मेरा टारगेट कहां पर है, और फिर जाकर वो उसी टारगेट पे हिट करते हैं. और दुनिया में दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते तो हैं, फिर वो कहीं ना कहीं गोली चलाते हैं, पर जहां पर गोली लग जाती है वो उसी को अपना टारगेट मान लेते हैं. Right. तो जो लोग जहां लगा उसको टारगेट मानते हैं वो जीवन भर पछताते हैं. लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. टू ऑल माई पेरेंट्स, आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, बच्चों का टारगेट बाद में पूछिए, पहले आप अपना टारगेट तो बनाइए. मैडम, यदि मैं ऑडियंस को पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनका टारगेट है, मैडम आई प्रॉमिस यू 90% लोग
इस ऑडियंस में ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा कोई टारगेट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा तो लक ऐसा है, Yeah. मुझे तो That- भगवान ने ऐसा बनाया है। टू ऑल माय ऑडियंस, एग्जीक्यूट आप कैसे करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप, उमा रावल जी लिखती हैं कि सर मेरा गोल है। उमा मैडम, मेरे से बात करिएगा बाद में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैंटेसी और गोल में जमीन आसमान का फर्क है। इस दुनिया में मैडम 99.9% लोग, जिग्गू सिरके जी आप लिख रहे हैं आई हैव अ गोल। सर प्लीज मेरे से, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आमने सामने नहीं बात कर पा रहे हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू माय नंबर, प्लीज सी माय नंबर एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद। कि दुनिया में 99.9% लोग ऐसे हैं जिनका कोई टारगेट नहीं है, वो अपने फैंटेसी को अपना गोल मानते हैं। क्योंकि क्रिकेटर को देखते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसा बनूंगा। वो फिल्म स्टार को देखते हैं, कहते हैं मैं ऐसा बनूंगा। वो किसी पॉलिटिशियन को देखते हैं, कहते हैं मैं ऐसे बनूंगा। वो किसी बिरलास को देखते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे बनूंगा। हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, उसके ऊपर कुछ गिने चुने लोग काम करते हैं। मैडम पता है रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग सोचते हैं। कितने? ओनली 2% पीपल थिंक। प्रिंसिपल मैम, नींद तो नहीं आ रही मेरी बात से? नहीं सर, इट्स सो इंटरेस्टिंग, कोई सवाल ही नहीं नींद आने का। सो वेरी कामिनी मैम, आई होप यू आर हैप्पी, क्योंकि आपको बड़ी चिंता थी ये स्पीकर कैसे होंगे, इनका भाषण कैसा होगा, हमारे लोग सो तो नहीं जाएंगे। एक्चुअली उनको सर, पता नहीं चिंता। आपने घंटी बजाई ना सर, सारे ऑडियंस जाके हैं। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ 2% लोग सोचते हैं। 3% लोगों को लगता है कि हम सोचते हैं। 2% people think and 3% people think that they think, और 95% लोग मर जाते हैं, they do nothing। मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, अपना गोल बनाइए। चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप हों, उनको यह पूछो कि बेटा तू जिंदगी में हासिल क्या करना चाहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, टू ऑल माय ऑडियंस। अंकुर बागी साहब लिखते हैं, सर व्हेन पीपल सेज you have to lead by example and follow the best, one also compete with stronger, how to overcome that thought process please। सर मेरी थोड़ी कहानी को चलने दीजिए, जैसे जैसे मेरी कहानी चलेगी और जब मैं क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा सर, तब आप मेरे से दोबारा पूछिएगा, सो आई विल अप्रिशिएट इट सर। सो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि इफ द प्लान डजंट वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको ये कहता हूं, मेक द प्लान विच वर्क्स। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान, नॉट द गोल। मेरे को ये नहीं मिला, मैं कामयाब नहीं हुआ, इस बार मेरे 80% नहीं आए, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करिए कि मैं कैसे करूं। हम क्या करते हैं, अपना गोल ही बदल देते हैं। यार मैं तो 80% के लायक नहीं हूं, मैं तो 60% पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। जिंदगी दो तरीके से जी जाती है कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। जिंदगी जीने के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मेरी अगली बात आपसे यह कहना है कि मैं आपको काफी सारी बातें बताना चाह रहा हूं, और इस कोरोना पीरियड में क्या हुआ, हर आदमी खूब ज्ञान दे रहा है। स्कूल वालों ने जान ले रखी है, कॉलेज वालों ने अलग जान ले रखी है, टीचर्स अपनी गा रहा है, वो अपने जो आ रहा है वो ज्ञान देके जा रहा है। और मैडम इस समय हमारे जो बच्चे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
उनके जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आता है उनको ज्ञान देके जाता है। बेटा ऐसा कर ले, बेटा ऐसा पढ़ ले, बेटा बड़ा बन के ऐसे हो जाना, बेटी तू ये कर लेना, इसका स्कोप है, उसका ये है। और मजे की और दुख की बात, सबसे बड़ी बात, बुरी अब क्या बात है कि ज्ञान कौन देके जाता है? जिसने जिंदगी में बहुत कुछ किया वो भी ज्ञान देके जाता है, और जिसने जिंदगी भर अपनी ऐसी तैसी कराई वो भी बच्चों को ज्ञान देके जाता है। उससे पूछो भाई तूने क्यों नहीं किया? बोले मेरी तो तकदीर खराब थी। तो टू माई ऑल ग्रेट ऑडियंस इन गुजरात, क्योंकि इस समय तो आप ही का डंका बज रहा है, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि यदि आपको मेरी कोई भी बात समझ में आ रही है तो प्लीज इसका नोट बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी 20 बात मानिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको यदि मेरी कोई भी बात अच्छी लगे उसमें से 2 बात मानिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। करते हम क्या हैं? हम आएंगे, बात सुनेंगे। इस समय कोई बात मेरी सो के सुन रहा होगा, कोई लेट के सुन रहा होगा, कोई प्रिंसिपल मैडम के प्रेशर में लॉगिन कर रखा होगा, कोई अपने टीचर्स के चक्कर में लॉगिन, देखो भाई आज क्लास से सुन लो मेरी बात, सारे बच्चे अटेंडेंस फुल होनी चाहिए। तो बच्चों ने भी कहा हमें दिखता तो कोई है नहीं, लॉगिन करके सो जाओ, बाकी ये तो ऐसे ही आएंगे, कोई ना कोई बोल के चला जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरा क्या कहना है, आदमी सुनता है मन भर। मन भर यानी मैडम 50 किलो। आपने अपनी माँ से सुना होगा ना, सवा मनी चढ़ा देंगे। बालाजी महाराज ये मेरा काम हो गया, सवा मनी चढ़ा देंगे। तो एक मन होता है 40 किलो का, तो सवा मन यानी 50 किलो, है ना? आपने सुना होगा ना, चूरमे का प्रसाद होता है अलग अलग, हमारे घरों में हमारी माँ प्रसाद चढ़ाया करती। तो आदमी सुनता है मन भर और सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर, और खुद ग्रहण नहीं करता है कण भर। वी ऑल आर वेरी गुड इन गिविंग ज्ञान। आप दुनिया का कोई भी आदमी किसी से भी ले लो। मैडम मैं आपके सूरत काफी पढ़ाने आया हूं, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, मैंने बहुत सारे स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस कवर करे हैं। और आपको दिल्ली से यदि सूरत जाना हो या बड़ौदा जाना हो तो उसका, या अहमदाबाद जाना हो तो उसका सबसे बेस्ट कनेक्शन राजधानी है। रात को बैठो तो उतर देती है, चाहे सूरत जाओ चाहे बड़ौदा जाओ, आप उतरिए होटल। मैं तो स्टेशन से उतरता था, जाके बढ़िया सी चाय पीता था, तैयार होता था और अपने भाषण में चला जाता था। तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठता था, जितने गुजराती मानस मेरे साथ बैठते थे वो मेरे को इतना ज्ञान मिलता था, इतना ज्ञान मिलता था, मुझे लगता है पूरे गुजरात को तो मैं इस 12 घंटे के सफर में जान गया हूं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज 2 पॉइंट बनाइए, उसको अपनी लाइफ में डालिए, सो दैट यू कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। अंजुम आरा जी कहती हैं कि ये सर आपना भी मसाला पता नहीं, देन इट हैज गॉन अप। अच्छा मैम, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं तो सबका अच्छा चाहती हूं, मैं तो सबका अच्छा चाहता हूं, फिर ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि हाउ पीपल ट्रीट यू इज देयर कर्मा एंड हाउ यू रिएक्ट इज योर कर्मा। हम आशा क्यों करें? मैं आज आपके बीच में आया हूं, मेरा आने वाले, जब से मेरा सेशन 4 बजे से शुरू हुआ, 5:30 तक का मेरा टाइम है। मेरा काम है अपनी बात को पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैं आप सबके सामने पेश करूं। हम शायद इसलिए मार खाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं लाइफ में कमिटमेंट में फेल होते हैं। ये जो मैं गजेरा चैरिटेबल ट्रस्ट को आज बता रहा हूं, इनके माध्यम से आज मैं सब आपके बीच में हूं।
मैडम आपके ट्रस्ट के अंदर इतने सारे टीचर्स हैं, इतनी सारी फैकल्टीज हैं, इतने सारा एडमिन स्टाफ है, मेरा आप सबसे निवेदन है, गजेरा ट्रस्ट आपको क्या दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एजुकेशन के लिए बच्चों को क्या दे रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी राइट सर, वेरी राइट। हम क्यों इस चक्कर में मुझे टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे होगा, मेरे को देखा नहीं जाता, मेरी बातों को सुनता नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी चलती है, उस मैडम की ऐसी होती है, सारे लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेने की बात। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे ऑडियंस, कि जिंदगी में आप किसी को देते हैं तब अच्छा लगता है या आप किसी को लेते हैं तब अच्छा लगता है? प्रिंसिपल मैम आपको क्या लगता है, जब आप किसी को देते हैं तब अच्छा लगता है या आप किसी से कुछ मांगते हैं तब अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स सर, देयर इज जॉय इन गिविंग, देने में ही अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स, अनडाउटेडली। तो जब आपको देना अच्छा लगता है तो हमारे साथ लेने की क्यों बात करते हैं? पता है मैम मैंने लाइफ में क्या सीखा, हम कितना दूसरों के लाइफ में डिफरेंस ला सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। True, sir. And Gajara Trust is committed to bring a difference in the society. And I'm very thankful to Gajara Charitable Trust। और मैं जो अंकुर जी हैं जिनके माध्यम से आपके बीच में आया हूं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी विद फोल्डेड हैंड एंड आई एम वेरी हम्बल टू थैंक यू मैम। Our pleasure, sir. So the point I am trying to say, let's understand yourself। और जिस रिसर्च पे मैं काम करता हूं, और मैडम कभी भविष्य में मुझे मौका मिला आपके इंस्टीट्यूट में आने का, मेरे को आप अपनी टीचर 6 घंटे के लिए दीजिए, व्हेन आई डू अ ट्रेनिंग विद देम, मैं आपको चेंज लाके दिखाऊंगा 20% उनके बिहेवियर के अंदर। Most welcome, sir. So the point I am to say, in 1968, for the first time, there was an American doctor called Dr. Roger Sperry, and he dissected a human brain। ये जो आप गोभी देख रहे हैं ना, गोभी नहीं आपका ब्रेन है। आज घर में काम करिएगा मैडम, शाम को पूरी एक पत्ता गोभी लेके आइए, उसको बीच में से काटिए, जब आप उसको काटेंगे तो जैसा ब्रेन आपको दिखता है वैसा ही एग्जैक्टली आपका ब्रेन है। तो 1968 में जश साहब मुझे लिखते हैं कि सर हाउ टू सेट अ गोल। ऊपर कई लोगों ने मुझे लिखा कि सर गोल कैसे सेट करना हमें बताइए। तो भैया यदि गोल सेटिंग का सेशन देखना है तो वो अपने आप में एक पूरा सेशन है। So madam, if you want me to help your people to set up a goal, you need to invite me again। Sure, sir. Again, our pleasure. So the point I am trying to say, मेरी ऑडियंस प्लीज आप मुझे एक बार लिखिए कि मेरे सेशन के दौरान अभी तक आपके चेहरे पे हंसी आई या नहीं आई, आपके चेहरे पे स्माइल आई या नहीं आई। सर मेरे लाइफ पागल है, सुबह उठते सोचता हूं कि है भाई हीरोइन। सर मैं वसानी साहब आपकी पूरी बात समझ नहीं पा रहा हूं। Sir, I request you and audience first to complete the session, then we'll have Q&A round for half an hour, for 30 minutes, 5 to 5:30. So first let sir complete the session and then we can do Q&A round. So what I'm trying to say मैम, in 1968 for the first time एक अमेरिकन डॉक्टर ने एक ब्रेन को ऑपरेट किया और ये पाया हमारे ब्रेन के 2 भाग हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। And he also discovered that the left part of a brain controls right part of a body and right part of a brain controls left part of a body, and there's a tube called corpus callosum which connects both the brain। और उन्होंने ये भी पाया कि राइट ब्रेन देखती है और लेफ्ट ब्रेन बोलती है। क्या मतलब हुआ कि आप कई बार किसी से अचानक कई सालों बाद किसी से मिलते हैं और अचानक
आप उससे बात करते हैं, अरे राम कहां था यार, स्कूल के बाद नहीं मिला, कॉलेज के बाद नहीं मिला, कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखता है तू, कितने सालों बाद हम मिले। और कई बार ऐसा होता है तो किसी से अचानक आप किसी से कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट या मॉल में मिलते हैं और उससे बात करने लग जाते हैं, क्या हाल है, कैसे है, घर में सब ठीक तो चल रहा है ना, पर पीछे का ब्रेन कहता है रब्बा नाम तो याद दिला दे, नाम तो याद दिला दे, नाम तो याद दिला दे, क्योंकि आपने उसको पहचाना पर उसके उसके उसको आप उसका नाम नहीं रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि राइट ब्रेन ने उसके पिक्चर को देखा और उस पिक्चर को लेफ्ट ब्रेन में रखा और लेफ्ट ब्रेन ने कहा कि हेलो राम, हाउ आर यू। और ये बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जब तक वो 2 साल के होते हैं, तब तक वो 98% क्रिएटिव होते हैं। कितने परसेंट क्रिएटिव होते हैं? 98% क्रिएटिव होते हैं। और वही बच्चे जब 10 साल के होते हैं तब वो 32% क्रिएटिव होते हैं। कितने परसेंट? 32% क्रिएटिव। और बुरी खबर उन लोगों के लिए जो 25 साल के हैं या 25 साल से ऊपर हैं, कि जैसे ही आप 25 साल के होते हैं आप खाली 2% क्रिएटिव रह जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपकी क्रिएटिविटी खत्म होती जाएगी। So the point I'm trying to say कि आपकी क्रिएटिविटी को बरकरार रखें। और मेन बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि विद इन 2 to 10 ईयर, विद इन 8 ईयर्स हमारे बच्चे 66% क्रिएटिविटी को खो देते हैं। और प्रिंसिपल मैम मेरा यह भी मानना है, प्रिंसिपल मैम मेरा यह भी मानना है कि मैंने दुनिया में देखा है कुछ लोगों में बहुत एनर्जी है, मैंने देखा है कुछ लोगों में बहुत प्रतिभा है, मैंने यह भी देखा है कुछ लोगों में बहुत ऑरा है, पर शायद ये उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऑरा मेरे पास बरकरार है। मैं हर समय चाहता हूं। और मैम पता है सबसे बड़ी मुश्किल बात क्या है? इस दुनिया में किसी को यह बताना कि आपके अंदर इतना ऑरा है और उस ऑरा को यूज करना सीखे, क्योंकि हम तो सब जिंदगी समझौतों के साथ बिता देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी अपने विचारों के साथ, अपने पावर के साथ, अपने ऑरा के साथ बिताएं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब वो मल्टी कलर्ड पेंसिल्स के साथ में जाते हैं, और वही बच्चे जब स्कूल से बाहर आते हैं तब वो सिंगल कलर पेन के साथ में बाहर आते हैं। इसी वजह से हम बच्चों की मल्टी कलर लाइफ से सिंगल कलर लाइफ बताना चाहते हैं। अभी मैम आई वाज प्रिंसिपल मैम, आई होप यू आर देयर। Yeah, of course, of course. I'm So here. ma'am, recently, I was talking to a friend of mine and I said, hello, you are so great. Use your aura, use your energy. और मुझे लगता है जिनको आप मानते हैं, जिनको आप चाहते हैं, एक टीचर क्या करता है? टीचर का काम क्या है? जो 40 लोग उसके क्लास में बैठे हुए हैं उसमें से किसी को आइडेंटिफाई करके बताना कि तू इसमें अच्छा है। बाकी के लोग क्या सोचते हैं कि शायद ये टीचर इसको फेवर करता है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो टीचर उस क्लास को पढ़ा रहा है उसको मालूम है मेरी क्लास में जो ये बच्चा है या मेरे जीवन में जो ये मेरे सामने है उसके अंदर 100% ऑरा है, और शायद यही बात वो सामने वाले को कन्विंस करना चाहता है। पर जब वो किसी बच्चे को या अपने सामने वाले को बताता है तो शायद उस बात को जल्दी से मानता नहीं है, या शायद उस सामने वाली मानती नहीं है कि हाँ यार मेरे में सब कुछ ऐसा कुछ करने का है। पता है मैम मुझे जीवन में क्या लगता है? होल्डिंग हैंड इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। क्योंकि दुनिया में सब लोग तो हमें पीछे गिराने में लगे हुए हैं। दुनिया में बहुत से लोग हमें नीचे खींचने वाले हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े? मैं कल कह रहा था मैम कि दुनिया में सब आपको क्या कहते हैं? तुम कामयाब हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं।
So the point I'm trying to say, ma'am, and this is the slide जो कि मैं आपको भेजने वाला हूँ. Sir, I would request you to elaborate more on right brain, left brain भी आप थोड़ा concept audience को बताएंगे तो I think that will. मैडम मैं बिल्कुल आ रहा हूँ. राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जरूर आपको समझाऊंगा, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लाइफ में कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है. Right. क्योंकि जिंदगी में कोई भी काम आप करिए, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कनेक्टेड हैं. आई ऑलवेज से इट वर्क्स when you are connected. It never works if you are not connected. और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं मैम, इसका प्रिंट आउट मैं आपको भेजूंगा. आप अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के सामने लगाइए कि बच्चा खाली 10% पढ़ता है जब वो 10% ही लर्न व्हेन ही रीड, 20% व्हेन वी हियर एंड 30% व्हेन वी सी. और लाइफ में पता है सबसे बड़ी बात क्या है? यदि कोई भी आपको गलतफहमी हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आए, आप आपस में डिस्कस करिए. मैडम मुझे लगता है इस डिजिटल वर्ल्ड ने और इस व्हाट्सएप के जमाने में इतना सारा कंफ्यूजन हमारी लाइफ में क्रिएट कर दिया है. यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज फोन उठाइए और उनसे बात करिए, क्योंकि एयरटेल ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए ये बात समझाने के लिए कि बात करने से बात बनती है. आपने किसी को कहा कि आई वांट टू मोटिवेट यू, आई वांट यू टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अक्सर सामने वाले क्या लिखते हैं? नहीं जी, आई एम डिसअपॉइंटिंग यू, नहीं जी आई एम डूइंग दिस. ऐसा नहीं है. यदि कोई आदमी आपको बोल रहा है, वो इसके लिए बोल रहा है. टीचर्स क्यों बार बार अपने बच्चों को क्लास में बोलते हैं? बिकॉज वो टीचर उनके लिए कंसर्न है. So there's a big difference in worried and there's a big difference in concern. मेरा पेरेंट्स और सबसे निवेदन है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अपने दिल की बात बोलना सीखिए. लाइफ में सेकंड बात क्या इंपॉर्टेंट है मैम? आपकी सोच इंपॉर्टेंट है. यदि मुझे आपके साथ काम करना है और यदि मुझे अपनी सोच पता है और मुझे आपकी सोच पता है, तो हमारा एक दूसरे के प्रति फीलिंग बेटर होगी. यदि हमारी फीलिंग बेटर होगी तो हमारा एक दूसरे के प्रति बिहेवियर अच्छा होगा, और यदि बिहेवियर अच्छा होगा तो रिजल्ट और आउटकम अच्छा होगा. मैडम दुनिया में सब लोग एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और बिहेवियर की बात करते हैं. मेरा यह मानना है आपकी फीलिंग कैसी है, आपकी भावना कैसी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आप सामने वाले से इसी वजह से बात करते हैं क्योंकि आपका उससे मन मिलता है. हम नहीं कहते मैम यार तेरे से तो मेरा दिल मिल गया, तेरे से मेरा मन मिल गया. एंड आई बिलीव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए मैडम रामायण में कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी. यदि आपको कोई आदमी पसंद आता है, आपको उसकी हर बात अच्छी लगती है, आपको उसकी छोटी से छोटी बात पसंद आती, समझ में आती है. और यदि कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी बड़ी से बड़ी बात या छोटी से छोटी बात गलत दिखाई देती है. ऑडियंस, आर यू विद मी? आई होप आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही मेरी बात से. No, sir, they are regularly commenting in the comment section. So I hope you are all awake and I'm extremely grateful to you कि आज आप स्क्रीन पे आए और मुझे सुन रहे हैं. शायद इससे बड़ा शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता कि आप मुझे अपना कीमती समय आप मुझे दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन विद फोल्डेड हैंड्स. अब मैडम लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की बात आपने मुझे कहा करने के लिए, तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? एक पिक्चर या टू पिक्चर? वन पिक्चर और टू पिक्चर? I can see two pictures. तो आपको दो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? Yeah, one is very neat, clean and organized desk, and another is a very messy one. ओके, सो जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट लोग हैं उनको क्या पसंद है? फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशन पसंद है.
वो लोग कैसे हैं? सिस्टम ड्रिवन लोग हैं। उनको क्या पसंद है? गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी पसंद है। लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट लोग कैसे हैं? मेरा क्या फायदा होगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। 2 बजे की मीटिंग है, यदि आप 2:15 आए, उनको लगता है सारा आसमान ऊपर से नीचे गिर गया। इनके सामने यदि कोई पोएट्री सुना रहा है, इनके सामने यदि कोई गजल सुना रहा है, ये कहता है बेकार की बातें क्यों कर रहे हो यार, काम की बातें क्यों नहीं कर रहे हो। ये किसमें विश्वास करते हैं? माई वे और हाईवे। काम करना है मेरे जैसा करो, नहीं तो गेट लॉस्ट। और मैडम ब्रेन रिसर्च क्या कहती है कि आपने देखा ना, बचपन में जब हम 18-19 साल के 20 साल के होते हैं, हमारे में कितना जोश होता है, हम कितनी नई नई चीजें करना चाहते हैं। और आपने देखा ना 20-22 साल के बाद में उनका चेहरा बिल्कुल अलग से उतर जाता है। क्योंकि बचपन से 20 साल तक मैंने देखा है, 19.5-20 साल तक, 18 साल तक उनमें अलग अलग नयापन होता है। वो नया काम करना चाहते हैं, उनमें चुलबुलापन होता है। पर जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप को एक बॉक्स में डाल देते हैं और वो जीवन में मान बैठते हैं कि नहीं यार, अब मेरी जिंदगी तो बस इसी के इर्द गिर्द है। हमारा क्रिकेटर राहुल द्रविड़, एक्सट्रीम लेफ्ट ब्रेन बैट्समैन, जब भी क्रीज में जाता है सेम शॉट अगेन एंड अगेन। जबकि राइट ब्रेन लोग बिंदास होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको दूसरे की चिंता होती है, उनको टच एंड फील में मजा आता है। आपने देखा ना, छोटे बच्चे कई बार आपके क्लास में आते हैं, वो आपका पल्लू पकड़ के खड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे कई बार आपको नहीं कहते कि मैम क्या मैं आपको छू सकता हूं, मैम क्या मैं आपको ये कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि वो फ्लैटर कर रहे हैं। लोग आपके विरुद्ध क्या समझते हैं कि यार ही इज फ्लर्टिंग। नो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, राइट ब्रेन लोग दे लाइक टू टच एंड फील। वो छूकर एहसास करना चाहते हैं कि आप, वो कपड़े की दुकान में भी जाएंगे, वो कपड़े ऐसे खरीदेंगे जैसे कोई टेक्सटाइल इंजीनियर हो, बड़ा सॉफ्ट है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दे लुक। They like music, they like poetry. All of a sudden they will start singing song. अच्छा, राइट ब्रेन के लोगों में खास बात और क्या होती है कि अचानक आप उनके चेहरे से पता कर सकते हैं कि इसके चेहरे में ये खुश है या कैसे। कई बार नहीं होता, आप किसी को कुछ कमेंट करते हैं या कुछ उसके बारे में कहते हैं, वो सामने कहता है तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे मन में चल रहा है। बिकॉज राइट ब्रेन के चेहरे पे सब कुछ बात सामने आ जाती है और आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। They are very emotional, they are very sensitive, they are very concerned. और उनको क्या लगता है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो जीवन में हरदम खुश है। नहीं होता मैम, कई बार आपको लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मैं तो हरदम तेरे लिए दुआ करता हूं, मैं चाहता हूं जीवन में तू खुश रहे। दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी इमोशनल। यदि सामने वाले की तबीयत खराब हो गई, उसको लगता है यार काश ये क्यों, इसकी क्यों खराब हुई, मेरी क्यों नहीं खराब हुई। आपने देखा होगा ना, कई बार लोग कहते हैं कि तू ठीक रह, तेरी, हमारी मां नहीं बोलती थी हमें कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। सो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वन नीड टू अंडरस्टैंड। वी हैव अ क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, ही इज एन एक्सट्रीम राइट ब्रेन बैट्समैन। आर्यमान वसानी साहब लिखते हैं कि सर मतलब में राइट ब्रेन, ओ मेरी मम्मी को हर बार जान लेती है। अरमान साहब, वसानी साहब, मुझे आपकी बात क्या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं या आई एम, तो यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट मी टू टेल मी। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि राइट He is ब्रेन trying पीपल। expressive. जी मैम बोलिए। Yeah, he's trying to say that he is that expressive कि उसकी मदर देख करके जान लेती है। That's okay. देखिए मैडम, दुनिया में मां का स्थान कोई नहीं ले सकता। True.
मां को बताना नहीं पड़ता कि आपके मन में क्या चल रहा है। सो खैर वो टॉपिक अलग है, अभी हम राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन की बात कर रहे हैं। और मेन बात क्या है मैम, टीचिंग के अंदर यदि आप एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे तो आप एक दूसरे को कुछ इस तरीके से देखेंगे। इस प्रोफेसर को क्या लगता था, दिस बॉय इज लेजी, डे ड्रीमर, नॉट ट्राइंग, हैव टू बी वॉच, अनडिसिप्लिन। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन लोगों के लिए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट ब्रेन लोगों को मस्ती, चेंज, उनको म्यूजिक पसंद है, उनको आर्ट पसंद है, उनको सी लाइफ पसंद है, उनको वाइल्ड लाइफ पसंद है, उनको हिल स्टेशन पे जाना पसंद है, उनको उनको शायरी लिखने का शौक है, उनको बात करने में, और कोई यदि उनके इमोशंस को टच करे तो उनको दे फील वेरी नाइस। आप उनके चेहरे से पता कर सकते हैं। यदि मैडम इस समय, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा कि मैं सबको देख पाऊंगा या खाली वन साइडेड में बात कर रहा हूं, तो आई एम श्योर यदि मैं सब मेरे सामने होते या मैं जिनको देख पा रहा हूं मैं उनके चेहरे से पता कर पा रहा हूं कि इस समय मेरी बात सुन के खुश हैं या उनके मन में क्या चल रहा है। Next time, sir, after this corona situation gets over. No. मतलब the point I am trying to say, ma'am, it is very important to understand the people who are opposite to you. और मैम मेरा ये स्ट्रांगली मानना है, एंड दैट इज व्हाट मैम वी डू विद चिल्ड्रन। जब बच्चे क्लास 8 से 12 तक आते हैं तो हम उनको एक ऑनलाइन प्रोग्राम देते हैं और मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि वो बच्चा लाइफ में क्या बनेगा, कैसे करेगा और वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकता है। यदि आप चाहते हैं अपने आप को जानना तो मेरा आपसे निवेदन है, आंख बंद करके 1 या 2 मिनट आप ले जाइए और अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं कौन हूं एंड हाउ आई कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। मैडम पता है हैप्पीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज ओनली हैप्पी पीपल प्रोड्यूस हैप्पी रिजल्ट्स। यदि बच्चे घर में खुश होंगे वो स्कूल में खुश होंगे, और यदि वो स्कूल में खुश होंगे तो घर में खुश होंगे। नहीं होता मैम, कई बार आपको किससे बात करनी होती है, यू आर सो एक्साइटेड, यू मतलब आपको लगता है यार 1 मिनट उसने लेट फोन करा, आपको लगता है यार 1 घंटा, पता नहीं 1 दिन शायद निकल गया। लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, एक्साइटमेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा ये मानना है ओनली अ चार्ज बैटरी कैन चार्ज अ डेड बैटरी। मैडम यदि आपको बैटरी चार्ज करनी है तो आपको डेड बैटरी चाहिए, चार्ज बैटरी चाहिए? That battery can be charged. Already charged battery is charged. तो यू नीड टू हैव अ चार्ज बैटरी, जिसमें एनर्जी होगी तो ही तो आपको एनर्जी देगा। Of course. और आपने ये देखना है कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो हमको लाइफ में एनर्जी दे सकते हैं। और मजे की बात क्या है मैम, कि एनर्जी आपको कहीं नहीं मिल सकती। ना आप दिल्ली खरीद सकते हो, ना बॉम्बे खरीद सकते हो, ना आप सूरत खरीद सकते हो, ना आप सोलापुर खरीद सकते हो, ना आप कर्नाटक में खरीद सकते हो, ना आप लंदन खरीद सकते हो। एनर्जी इज ऑल हियर, ये आपके ब्रेन में है और उस एनर्जी को आपने चार्ज करना है। और मैं फिर आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि दूसरों की बात सुनकर डिमोटिवेट मत होइए, अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, अपने अंदर के ऑरा को पहचानिए। मैं मेरी ऑडियंस को एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने जीवन में बहुत ऊंच नीच देखी है। जब मैंने घर छोड़ा मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान को मंदिर में, मस्जिद में किसने नहीं देखा, भगवान तो हमारा एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक हमें उस एक्सपीरियंस के साथ जीना है। और लाइफ में कुछ लोग हमारी लाइफ में अच्छा एक्सपीरियंस लाते हैं और कुछ लोग हमारी लाइफ में बुरा एक्सपीरियंस लाते हैं। और मेरा आपसे क्या कहना है कि आपके पास जो होगा वही तो आप दूसरे को दोगे। यदि आपके रसगुल्ले, आप दूसरे गुलाब जामुन दे सकते हो क्या?
तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही चीज देंगे और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव देंगे। बड़ी सिंपल सी कहानी है मैम। And what I want to tell you, friends, and to all my great teachers, a good education can change anyone, but a good teacher can change everything. महर्षि चाणक्य कहते थे कि सृष्टि का विनाश भी अध्यापक करेंगे और इस सृष्टि का विकास भी अध्यापक करेंगे। लाइफ में पता है मैम मुझे क्या लगता है, एक राइट एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, एक हैंड होल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मैडम इस कोरोना पीरियड में मैंने एक ही चीज पाई, इस कोरोना पीरियड में मैंने एक ही चीज पाई, लोगों को ज्ञान मत दीजिए, उनका हैंड होल्ड करिए। आप उनको बताइए तो सही कि आई केयर फॉर यू सो मच। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स, और मैडम ये मेरी स्लाइड कहती है कि यूज योर इन्फ्लुएंस नॉट योर पावर। मैं चाहता हूं जितनी ऑडियंस मुझे देख रही है या सुन रही है वो इस बात को जरूर से नोट करे कि आप अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करिए, ना कि पावर को। लोग आपसे इसलिए नहीं बात करते हैं कि आप पावरफुल हो, लोग आपसे इसलिए प्यार करते हैं, लोग आपसे इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि आपने उनकी जिंदगी में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी न किसी बात के अंदर आपने उनके दिमाग पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर। और दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल यदि इन्फ्लुएंस का है तो दैट इज मदर टेरेसा एंड प्रिंसेस डियाना का है। कितना टाइम हो गया मैम, इफ यू कैन टेल मी प्लीज। या सर, इट वुड बी गुड अगर हम 2-3 मिनट में Q&A राउंड स्टार्ट कर सके, सो आई थिंक वी विल बी एबल टू हेल्प। ओके, सो जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स एंड मैं बस वो टाइम देखना चाह रहा था कितना टाइम हुआ, क्योंकि मेरे सामने वॉच नहीं है और दैट इज व्हाई कि आई आस्क यू फॉर दिस। सो मेरा ये कहना है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करिए, ना कि पावर। प्रिंसेस डियाना इसलिए पॉपुलर नहीं थी मैम कि वो सुंदर थी। दुनिया में मैम, मेरी नजर में ऐसे लोग हैं शायद जो उनसे ज्यादा सुंदर है। वो इसलिए पॉपुलर नहीं थी मैम कि वो प्रिंसेस थी, इसलिए पॉपुलर थी क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया। तो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करिए। और मैम हमारे जो योगी साहब हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि सत्ता तो विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती। आप इन लोगों को देखिए मैम, ये ऊपर के जितने लोग हैं सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और नीचे के जितने लोग हैं सिर्फ पावरफुल लोग हैं। तो मेरा ये कहना है अपने बच्चों को का ओवरऑल विकास करिए, खुद का तो विकास करिए। मेरा आपसे कहना यह है कि मंकीज, दुनिया में सबसे ज्यादा कूदने फादने वाले कौन लोग हैं? बंदर। फिर भी पता है बंदर पेड़ों से गिर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। यार आपको जरूरी नहीं है परफेक्ट होना, आपको खाली अपने ऑरा पे काम करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और मेरा ये स्ट्रांग मानना है कि वी लर्न, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। और पता है मेरे जिंदगी की जो सबसे बेहतरीन लाइन है
जिसको मैं सबसे ज्यादा मानता हूं मैडम, वो ये है कि नोबडी एनीवन कैन मेक मिस्टेक। हम में से कोई भी गलती कर सकता है, गलती करना कोई गुनाह नहीं है। और Yeah. दुनिया में वही लोग कामयाब हैं जो अपनी गलतियों से सीख के आगे जाते हैं। तो मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है। आप इसकी चिंता मत करिए मेरे से गलती क्या होगी। और इस दुनिया में मेरा ये कहना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमने क्यों उसके परफेक्शन पे जाना है? मेरा ये मानना है कि आपके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं उसको आप पहचानने की कोशिश करिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, यू ओनली लिव वंस, बट इफ यू डू इट राइट, वंस इज इनफ। अपने आप को प्रूव करने के लिए 7 जन्म नहीं लेने हैं। ये खाली किताबों में बातें, हम 7 जन्म का साथ है। एक तो जन्म संभलता नहीं, 7 की बात करते हैं। ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है, इस मौके को यूज करिए और अपना बेस्ट दीजिए। और इस बात पे मत जाइए कि मेरी एज ये हो गई है, मैं जीवन के इस पड़ाव पे हूं। एज तो खाली दिमाग में होती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि लाइफ इज नो रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। हम अपने टीवी को, अपने फ्रिज को, अपने एयर कंडीशनर्स को रिमोट से चलाते हैं। अपने जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में मत दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि हौसला और घोंसला मत छोड़िए, बाकी सब सही हो जाएगा। लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? हौसला रखना। लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे बनाए रखना। विद दिस नोट, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली टुडे and always. Thank you very much, ma'am, for inviting me, and I'm very thankful to Gajera Foundation to invite me to present my views on today's topic. Thank you very much for your kind appreciation. और अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा मैम, and to all my great audience, कि जिंदगी जीना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर साइंस तो जरूर है। उस साइंस को पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। Very nice. Thank you, sir. Thank you so much. Your talk was very witty as well as informative also. Now the forum is open for Q&A round. Audience can pose the question in comment section. Yes, ma'am. I'm open for question answer. And ma'am, you can. I don't know how to write, but you can give my numbers to the audience, and because on the screen, if you can your IT team show my screen, ma'am? Pardon, sir? Can your IT team show my screen, the current screen? Yeah. So now the audience can have my numbers. So Mukta Patel ma'am लिखती है, very nice information given by you sir, thank you very much, I truly appreciate ma'am. Sandeep Chawda साहब लिखते हैं, thank you very much. We will try to apply your, do not try. Hello पूनम मैम, आपने कहा we will try कुछ नहीं होता लाइफ में, आपने करना है, that is what is important. Thank you very much. Question. Thank you very much, Kiran Kumar Shrimali. Thank you. Very nice, mind-blowing information. I have a question for you, sir. The first question is from Bhavika Soni. Can you say something about subconscious mind? I'll repeat the question. Can you say something about subconscious mind? Bhavika Soni is asking the question. Madam, subconscious mind is a very big topic, ma'am. इसको अभी 1 मिनट में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है।
पर चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आपका जो ब्रेन है, 7/8 of your brain is subconscious mind and 1/8 of your brain is conscious mind. रिसर्च ये कहती है कि वॉट एवर यू पुट इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, यू डोंट मेक अ प्लान टू गेट इट हैपन, द यूनिवर्स मेक अ प्लान टू मेक इट हैपन. आपने जो कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला वो आपको मिलेगा. आप राइट डालिए तो सही. हम लोग क्या करते हैं, हम जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने ब्रेन को कंफ्यूज करते हैं. आपके ब्रेन को राइट, हम क्या, आप क्या कहते हैं, हाँ मैं होना तो चाहती हूं या मैं कामयाब होना तो चाहता हूं. फिर हम क्या कहते हैं, नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, यार ये बड़ा मुश्किल है. अब आपका ब्रेन नहीं समझ पा रहा है कि जो पहले बोला वो सही है या जो बाद में बोला ये सही है. राइट, राइट, वेरी राइट. जितना आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा उतना आपको काम करने में आसानी होगी. Okay. Okay. Sir, yeah, the next question is from Ms. Shilpa Rajput. How to identify my aura? हाउ टू आइडेंटिफाई योर ऑरा. पहली बात तो अपने दिमाग में डालिए तो सही भैया, ऑरा कुछ चीज है. हम तो क्या करते हैं मैम, मैंने जो आपको जो ब्लैक डॉट दिखाया था, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमें तो कमियां नजर आती हैं. मैम मेरे लाइफ में कई लोगों से मिलने के मौका मिलता है. गॉड इज वेरी काइंड इनफ कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से बात करने का, सीखने का मौका मिलता है. तो कई बार मैं उनसे पूछता हूं, यार यू लुक सो नाइस, यू लुक सो गुड. बोले तुम्हें किसने कह दिया, मुझे तो नहीं लगता. तो मैंने कहा कभी आपने अपने आप को नजर से देखा ही नहीं. मेरा आपसे क्या कहना है कि आप अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानने की कोशिश करिए, आपको अपना और अपने आप पता लग जाएगा. Thank you. नवनीतराम पटेल साहब या मैडम लिखते हैं कि वाई द स्टूडेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी नॉट वांटेड टू बिकम अ टीचर इवन दो इट्स अ प्योर प्रोफेशन, एवरीवन वांटेड टू अर्न मोर मनी. ऐसा नहीं है सर. सर मैं इतने बच्चों को जब मैं पढ़ाने जाता हूं, मैंने आज तक 5 लाख बच्चों को पढ़ाया है. मेरे सेशन के बाद कितने बच्चे कहते हैं सर बताइए हम टीचर कैसे बने. सर हमारी जिंदगी में 2 चॉइस है, क्या तो हम पॉजिटिव सोचें या हम नेगेटिव सोचें. मैं आज ही सुबह बता रहा था मेरे एक मित्र को कि हर सीड का एक ब्लूप्रिंट है. हमने सुना ना मैम कि रूट अच्छा होगा फ्रूट तभी अच्छा होगा. अच्छे रूट पे काम करिए, अच्छी भावनाएं रखिए, पॉजिटिव सोचिए, आपको पॉजिटिव मिलेगा. मैडम आपने कई बार लाइफ में देखा होगा, किसी के बारे में आप सोचते हैं, आप किसी के बारे में बात करते हैं, कई बार आपको 1 साल में मिलता है, कोई आदमी आपको 5 साल में मिलता है. कई बार मैंने ऐसे लाइफ में देखा जहां 20-20 साल लग जाते हैं. तो क्यों 20 साल लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है. जब वो कनेक्शन राइट जगह जाएगा तो आपको सामने अपने आप दिखने लग जाएगा. यही ऑरा है. आई होप माई ऑडियंस एग्रीज विद मी. Yes. Isha ma'am says, how are memories Yes, stored and retrieved? say it again. How are memories stored and retrieved? Question can be displayed. Yeah. How memories are stored and retrieved. That's right. तो तिवारी मैडम है या सर है मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं नाम नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैडम का नाम है या सर का नाम है. तो जो भी तिवारी जी हैं इनको मैं कहना चाहता हूँ कि मेमोरी हमारा इंटीग्रल पार्ट है. ये कोई हार्ड डिस्क नहीं है कि आपने हार्ड डिस्क पे मैसेज डाला उसको डिलीट कर दिया. यदि आपके पॉजिटिव विचार रहेंगे तो आपकी मेमोरी स्टोर रहेगी.
यू कैन हैव इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। नहीं होता क्या, कई बार आपको इससे मिलते हैं और पुरानी पुरानी बातें बताते हैं, यू नो हम जब 20 साल पहले मिले थे तब ऐसा हुआ था, फिर हम दिल्ली मिले थे तब ऐसा हुआ था, जब हम पार्टी में मिले थे तब ऐसा हुआ था। व्हाई? जो चीज आपको पसंद है आप उसको याद रखते हैं, जो चीज आपको पसंद नहीं है अक्सर हम उसको डिलीट कर देते हैं। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। मेरे को तो मैम ये लगता है कि आप पॉजिटिव होंगे आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, और आप नेगेटिव होंगे आपको सब कुछ बुरा लगेगा। मेरे को आज तक कभी कुछ बुरा नहीं लगा। Yeah, very right. Very right, sir. Next question. Next question is from Ms. Garima Gandhi. Can we train our brain to be a particular sided, right or left? कैन वी ट्रेन अवर ब्रेन टू बी पर्टिकुलर साइडेड? यस, हमारे अंदर दोनों ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन। पर होता क्या है कि व्हेन यू आर बोर्न, जब आप 25% थिंकिंग आपके पेरेंट्स से आपको जीन्स में मिलती है, और 75% आप उम्र जीवन के 18 साल तक डेवलप करते हैं। तो आप देखिए ना मैम, जब हम बड़े होते हैं तो जो कुछ हमारे लाइफ में शुरू के सालों में घटा होता है उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। हम जब बिजी हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं, तो कई बातें धूल पड़ जाती है, पर अचानक जब हमें याद आती है तो रिमेंबर। स्पेशली 9 साल तक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक बच्चा 9 साल का होता है वो 6 भाषाएं सीख सकता है। Okay. बच्चों को इसमें कोशिश करिए। और देखिए हमारा पेरेंट बड़ा डिमांडिंग हो गया, वो क्या चाहता है, मेरा बच्चा गिटार भी सीख ले, मेरा बच्चा डांस भी सीख ले, मेरा बच्चा ये भी कर ले, मेरा बच्चा वो भी कर ले, ऐसा भी कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, उसको सांस तो लेने दो। अब देखिए मैडम, एजुकेशन पॉलिसी ने क्या करा, पहले तो माँ बाप, बच्चे, पेरेंट्स कंप्यूटर मत यूज करो, मोबाइल यूज मत करो, अच्छी बात नहीं है, इससे ब्रेन डैमेज हो जाएगा, इसके रेज ऐसी हैं वैसी हैं, सारा ज्ञान देते थे। अब क्या कहते हैं, आप यूज करो। Need of an hour, sir. समय की मांग है। अच्छा एक बात बताइए मैडम, 6 महीने कोरोना रहा, अब खुलने वाला है समझो, मत पढ़ाते यार, क्या आफत आ गई? 6 महीने मौज करने देते। इन माई स्कूल आई से नो टीचिंग। Practical. Sir, here we have a very interesting question. देखिए, अब आप 1 महीने बाद एजुकेशन शुरू होगा, फिर बच्चों बोले मोबाइल मत यूज करो। Right, sir. Sir, next question from क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे आप बड़े मतलबी हो, आपको जो सूट करता है बोल देते हो। Okay. Sir, shall I take next question? यस मैम। Yeah, sir. Now we have a next question from Mr. Jayesh Patel. How can we achieve team goal with different people with different abilities and different personality? That's a very interesting question. पहले तो गोल बनाइए। देखिए मैम, मजे की बात क्या है, कंपनी हो चाहे घर हो, सब गोल बना के दीवार पे टांग देते हैं, ठीक है ना? ये गजेरा चैरिटेबल ट्रस्ट के गोल है। आप तो प्रिंसिपल मैम है मैम, मेरा सेमिनार खत्म होते सारे टीचर्स को जूम पे लीजिए और पूछिए कितनों को गोल याद है। गोल होना, गोल को याद रखना और गोल को जीना, ये सारी बातें अलग अलग हैं। मेरा क्या कहना है मैम कि जो आपने पहली बार देखा वो आपका सपना है, यदि उसी सपने को आपने दूसरी बार देखा वो आपकी डिजायर है, वो आपकी चाहत है, और जब आप अपनी चाहत को तीसरी बार देखते हैं वो आपकी जिंदगी में आपका पैशन बन जाता है, और आप अपने पैशन को बार बार देखते रहेंगे, उसके बारे में ड्रीम करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे, तब वो आपकी लाइफ में गोल बन जाएगा। और जब आपका कोई चीज गोल बन जाएगा तो मेरा विश्वास कीजिए, उस गोल के लिए ईमानदारी से मेहनत करिए, आपको जरूर से ईश्वर आपके सामने लाके देगा। But sir, second part of question is ये मैं किसी और का नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना विश्वास बता रहा हूं।
कि जिसके ऊपर आप ईमानदारी से काम करिए, आप ईमानदारी से कोशिश करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और ईमानदारी से चाहिए। चाहत समझ रहे हैं, चाहना, आप ईमानदारी से चाहिए, ईश्वर आपको जरूर देगा। मैम कल आपने मुझे कहा था सर 1 घंटे का ही सेशन होगा, मैंने आपसे कहा था नहीं मैम 1.5 घंटा करिए, मुझे मालूम है क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। Right, sir. मैम वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम उमर रावल। उमर रावल जी सर पूछ रहे हैं, हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, इसके लिए ब्रेन को कैसे तैयार करें? नेगेटिव मत आने दीजिए, पॉजिटिव रहोगे। जो बुरा बोलिए मुंह फोड़ लीजिए। मैं मेरी लाइफ में जब भी कोई नेगेटिव मैं सुनता है या कोई मेरे आसपास करता है, तो एक काम करें, कल बात करें इसके बारे में। मुझे मैडम आप विश्वास कीजिए, एंड आई एम श्योर यदि ऑडियंस में यदि कोई मुझे जानता है या पहले से जैसे यदि मुझे कोई पहचानता है जिसने मुझे कभी पहले सुना होगा, ये वो बात देखते होंगे कि यदि उन्होंने कोई भी नेगेटिव जैसे ही बात भी उन्हें मैं उससे रोक देता हूं कि भाई एक काम करें, प्लीज लेट्स स्पीक अ पॉजिटिव लैंग्वेज। पर मुझे सब पॉजिटिव लगता है। और दूसरा देखिए ऑडियंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने चेहरे पे स्माइल लाइए। मुझे मालूम है किसी की तबीयत खराब होगी, किसी का कुछ होगा, पर अपनी स्माइल अपने चेहरे पे बरकरार रखिए। यदि आपके चेहरे पे स्माइल है ना, आपको भी पॉजिटिव फील होगा और जो आपके सामने हैं उनको भी पॉजिटिव फील होगा। दुनिया में सबको हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। यस मैम। सो हायतुक साहब लिखते हैं कि सर प्लीज कंप्लीट योर व्यू अबाउट ऑनलाइन स्टडीज। देखिए साहब, ये गजेरा फाउंडेशन का प्रोग्राम है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि हर के अपने व्यूज हैं। मैंने अपनी बात बता दी, और जो मेरे अपने स्कूल्स हैं गोइंका पब्लिक स्कूल्स, मैंने अपने स्कूल्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कराई। मेरे पास में इंडिया का फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा सिस्टम सेट है। मैंने पेरेंट को होमवर्क दिया, ना कि बच्चों को होमवर्क दिया। मैंने पेरेंट से कहा कि बच्चों को गार्डनिंग सिखाइए, बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाइए, घर में साफ सफाई कैसे होती है वो सिखाइए, जो आपके घर में आता है मेहमान उसको कैसे रिस्पेक्ट करना है वो सिखाइए, माँ बाप के पैर दबाना सिखाइए, माँ को हग करना सिखाइए, माँ के पास सोना सिखाइए। मेरे यहाँ पे जो चेकलिस्ट बनी हुई है मैम, आप चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूं कि मैंने हर पेरेंट की ड्यूटी लगाई है कि उन्होंने 5 नई चीजें अपने बच्चों को क्या सिखाई है। सर गजेरा ट्रस्ट की भी यही कोशिश है कि बच्चों को क्रिएटिवली एंगेज कैसे रखें, जो कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उनमें जो एनर्जी बनी हुई है उसको एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, और गजेरा ट्रस्ट भी वही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गुरप्रीत सिंह। सर, एज यू सेड आफ्टर 25 years we are only 2% creative, so how can we improve it? यदि आपको बात तो पॉजिटिव रहिए, नंबर 1। और दूसरी बात है, आप जो काम करें पैशन से करिए। आप पढ़ रहे हैं, आप किसी को मान रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, जो भी जिंदगी में काम करें उसमें पैशन लेके आए। जब आप कोई काम में पैशन लेके आएंगे ना मैम, तो आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब होता क्या है मैम कि हमारी जिंदगी में वाव ही नहीं बचा। वाव फैक्टर से क्या मतलब है, जब आप कोई से मिलते हैं या किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा भैया पिज्जा देना, आपको पिज्जा अच्छा लगा, आप क्या बोलते हैं, वाव। हमारी जिंदगी में क्या तकलीफ है मैम कि लोगों की जिंदगी से वाव फैक्टर जा रहा है। फिर भी मजे की बात क्या, लोग शादी कर रहे हैं, शादी होने के बाद भी उनकी जिंदगी में वाव नहीं होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी खुशियों से जिए, ना कि समझौतों के साथ जिए। आप अपने आप कोई काम करिए ना मैडम, देखिए आपको अपने आप क्रिएटिविटी मिल जाएगी। क्रिएटिविटी क्या है, टाइम निकालना, ढूंढना,
उस काम को करने का अलग तरीका पाना। आई एम श्योर दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट। ना तो है ही आसान, जिंदगी में सबसे आसान काम क्या ना नहीं हो सकता, पर उस काम को करना, उस काम को जीना, उस चीज में इतना खो जाना, वही क्रिएटिविटी है। यस मैम, आई होप आई डन माय जॉब। Yeah, or you of course. or you want me to ask me any question, I'm available. We are running out of time. We can take a last question of the session by Mr. Ankur Bagi. Sir, how to imbibe sanskars in today's generation children, which is badly missing these days? Please guide. And that will be the last question of the session. मैम, ये जो संस्कार है ना, ये बड़ा वेग टर्म है। लाइफ में होता क्या है मैम, हम वो काम करते जो हमें सूट करता है। मेन बात क्या है कि घर में कोई भी हो, हम हर समय दूसरों के लिए जीते, ना कि अपने लिए। आप अपनी लाइफ को डिस्कवर करके तो देखिए, आपको अपने आप सब चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैडम, ये भानु मैम ने एक सवाल लिखा है कि सर, द राइट ब्रेन पीपल आर देयर, हाउ कैन द अदर पीपल। ये भानु मैम सवाल दोबारा लिखेंगे प्लीज? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर, द राइट ब्रेन पीपल आर देयर, हाउ। मैम, ये मुझे क्वेश्चन समझा सकती है? क्वेश्चन सर ऐसा है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला राइट ब्रेन है या लेफ्ट ब्रेन पर्सन है? हाउ टू आइडेंटिफाई सामने वाला राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन? नहीं, बहुत आसान है मैडम। जिसके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती वो लेफ्ट ब्रेन है, जो मस्त रहता है वो राइट ब्रेन है। सिंपल सी बात है। लेफ्ट ब्रेन का आदमी हरदम व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनेगा, हर चीज में पैसे गिनेगा, मेरा क्या फायदा होगा गिनेगा, वो लेफ्ट ब्रेन है। जो कहता है यार थोड़ा हंस के तो दिखा, यार अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट तो लेके आ, मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे फील करना चाहता हूं, वो राइट ब्रेन है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, क्या राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए और फिर आप नेक्स्ट आदमी को पहचानने की कोशिश करिए। अच्छा, होता क्या लाइफ में, हर समय आप क्या उम्मीद करते हैं, सामने वाला वैसे बिहेव करे जैसे मैं चाहता हूं। जरूरी नहीं है, आप वैसे भी तो बिहेव करते जैसे सामने वाला चाहता है। आप उसको जानिए, उनके मन की बात समझिए और कोशिश करिए कि उनके साथ उनके मन की बात करें, सब चीज ठीक हो जाएगी। सर, पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना होता है? अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छी अच्छी बातें करिए और अच्छी अच्छी बात सोचिए। यही पॉजिटिव रहने के लिए करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। Yeah. Okay, then we have lined up. मेरा खाली एक ही निवेदन है मैम। Yes, sir. जो आपका दिल गवाह करे उसको पूरे शिद्दत के साथ जिए। Right. बस मेरा तो आपसे एक यही हाथ जोड़ के निवेदन है। आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप आर्टिस्ट बनो, आप रॉकेट साइंटिस्ट बनो, आप कारपेंटर बनो, आप म्यूजिशियन बनो, मैं मेरी ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूं और जो कि मेरे बहुत ही दिल के करीब है। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो आई यूज्ड टू प्ले म्यूजिक। तो कई दिन से मैं सोच रहा था कि मैं तबला सीखूं। मैं तबला लाया भी, करने भी वाला था। और एक दिन मैम, मैं ऐसे ही मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, उसने कहा यार तेरे पे गिटार अच्छा लगेगा। तो मैंने मेरे सर को कहा कि सर मैं गिटार सीखना चाहता हूं। और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि ये मेरा गिटार मेरे सामने है और मैं नाउ आई एम लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग गिटार नाउ। सो मैं कहता हूं जो आपका मन करे आप करिए, पर उसको पूरे से करिए, बट दैट्स इट।
क्योंकि देखिए साहब, मैं तो मैडम एक ही बात मानता हूँ कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए। Thank you so much. Thank you very much. Sir, you have brought a new insight to the new, I must say that philosophical insight to the topic, the magic of your brain. And the session was very enlightening, very enriching, and it was pleasure to hear you, sir. And you helped us to kindle a renewed enthusiasm. Thank you very much, sir, for attending the session. And on behalf of Gajera Trust, I would like to extend a big thank you for a very enlightening, a very enriching. Your speech was very stimulating. I would like to thank Gajera Trust and our trustees, Shri Chunibhai Gajera, Ms. Kinjal Gajera, ma'am, for always being there in supporting the community. And a big thank you to our viewers who have joined us and were very active throughout the session. Thank you, everyone. Thank you so much. This is Mrs. Shweta Parihar signing off. Stay safe. Yeah. No, Stay and safe. ma'am, I want to say I'm so happy that I could see so many comments from the participants. I'm so happy. I'm so happy, Shweta ma'am, I could see smile on your face. And I'm so thankful to Kamini Patel ma'am that, starting to end, she was always having a smile on her face. Thank you very much. Thank you so much, sir. Shoot kara ma'am career ka. So if they want to know why career is important in life, so just go to my YouTube and you can just type Shankar and can see this. And I'll be more than happy to assist you as much as you can. And thank you very much for inviting me, Gajera Foundation. And thank you very much, PMP Publications, for inviting me. Namaste. Thank you so much, sir. Thank you, Ji. God bless you.